Jitendra Tomar is being questioned inside. In fact, you spoke to Ashutosh just a short while back and he said that he's being made to sign some documents. What are these documents that Ashutosh is talking about that Jitendra Tomar is being made to sign? In fact, Navika, here if I can just show you, we have Kumar Vishwas and Ashutosh, the Aam Aadmi Party leaders here. In fact, we are not very sure about what particular documents Ashutosh is talking about, but he is alleging that the police here at the Vasant Vihar AATS office, they are trying to forcefully make Jitendra Tomar sign some documents. In fact, he's also saying that Jitendra Tomar is being manhandled by the police officers here. He was slapped also. This is what the Aam Aadmi Party leaders are alleging. In fact, Navika, what we are understanding at this point of time is that more Aam Aadmi Party leaders are expected to join here. They are saying that they are not being allowed to even go inside and meet Jitendra Tomar. They are alleging that this is a conspiracy by the central government, by the Modi government, also by the SG's office, because they claim that as soon as the SG's name came in the CNG scam, that is when Jitendra Tomar was picked up. And why no action is being taken against BJP leaders such as Smriti Irani and Ram Shankar Katheria, against whom also there were cases of fake degrees. In fact, we are going to try and go across to Kumar Vishwas as soon as he gets some time off here, Navika. But they are saying that they are going to sit on a protest here till the time the case isn't taken back. In fact, despite the fact that this is a case that has not been lodged by any of the BJP leaders or the Congress leaders, it is a case which has been filed by the Bar Council, but the Aam Aadmi Party leaders clearly saying that this is a political vendetta that is being played by the central leadership and the Lieutenant Governor's office only to divert the attention from the LG's name, which is included in the CNG scam. In fact, Kumar Vishwas is joining us live, Navika. Kumar, Ashutosh is claiming that certain documents are being forcefully, in fact, Ashutosh, if you could also join us, you have been claiming that some documents are being signed by Jitendra Singh Tomar. Pressure पड़ रहा है उसको. What sort of documents are you talking about here? मेरा सिर्फ ये कहना है कि चाहे ढाका जाइए, चाहे शिकागो जाइए, चाहे वाशिंगटन जाइए, लगता यह है कि साहिब जो है वो 3 का आंकड़ा भूले नहीं है. उसके आगे शून्य जो लगा हुआ उनको परेशान करता है. यही केस, सेम केस श्री कठेरिया जी, जो आदरणीय मोदी जी के यशस्वी शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर चल रहा है. यही केस उनकी विदुषी, परम विदुषी मंत्री आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी के विरुद्ध चल रहा है. ये केस सब जुडिस है. इसमें मंत्री महोदय हर बार हर डेट पे जाते हैं, अपने कागज प्रस्तुत करते हैं और उनके कागज सही है ऐसा वो कह रहे हैं. मैं नहीं मानता, कोर्ट तय करेगा. लेकिन आप किसी व्यक्ति को आतंकवादी की तरह सुबह उसके घर से उठाएंगे, उनकी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर को बाहर धक्का देंगे, एक निर्वाचित मंत्री जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है उसको फोर्सफुली पीछे की सीट पर फेंक देंगे और उसके बाद यहां लाकर आशुतोष के साथ मारपीट करेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे. मैं बाहर खड़ा हुआ, आप ही अंदर नहीं आ पा रही हैं. टाइम नाउ तो बड़ा क्रांतिकारी चैनल है. मैं आदरणीय अर्णब गोस्वामी जी से अनुरोध करता हूं कि आज वो प्रधानमंत्री जी को फोन करें, अरुण जेटली जी को फोन करें और कहें कि कम से कम इतना तो प्रेस की आजादी रखें कि आपको सड़क पर. That's not the point out here, Kumar. There is a case of fake degrees. There's an allegation of fake degrees here. How is Aam Aadmi Party trying to justify that? बिल्कुल नहीं. हमने कहा जस्टिफाई किया? स्मृति ईरानी को हमने जस्टिफाई किया? नहीं. स्मृति ईरानी के फेक सर्टिफिकेट पे मुकदमा चल रहा है, कठेरिया जी पे फेक सर्टिफिकेट का मुकदमा चल रहा है. उन्हें गिरफ्तार किया किसी ने? कुछ हुआ नहीं. हम यही कह रहे हैं, मुकदमा है, उसमें हर बात पे जाते हैं. सुबह उठाना बिना सम्मान के, बिना स्पीकर को सूचना दिए, बिना मुख्यमंत्री को संज्ञान में लिए, ये आपातकाल जैसे माहौल से क्या जस्टिफाई करेंगे? मोदी गवर्नमेंट. आप, मैं टाइम्स नाउ से पूछा हूँ, आप चला रहे हैं फेक डिग्री, आपने तय की है? टाइम्स नाउ जस्टिस हो गया है, हाई कोर्ट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट हो गया है. अरे आने दो. अच्छा, कल जितेंद्र तोमर की डिग्री असली निकली तो क्या टाइम्स नाउ क्षमा मांगेगा इस बात पर? It's not about Times or any other channel. Kumar, you are trying to blame the Modi government out here for whatever is happening today. बिल्कुल, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. मैं दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है. एक निर्वाचित मंत्री को, अरे सेम केस कठेरिया जी पर है, सेम केस. उन्हें उठाया किसी ने? दिल्ली पुलिस सुबह पहुंचती है, कहती बात जरा करनी है, बाहर आइए. बाहर आते हैं, उनको गाड़ी में बैठाती है, उनके ड्राइवर को धक्का मारता है. एसीपी चला रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है. एसीपी खुद गाड़ी दिल्ली सरकार की चलाते हैं. मंत्री आगे बैठे हैं, उनको बीच रास्ते में उतार के पीछे बिठाया जाता, धक्का मार के. मंत्री उतरने से मना कर देते. उनका मोबाइल छीन लिया जाता. जब मैं बात कर रहा था उससे मोबाइल छीना गया. उन्होंने कहा भाई साहब मुझसे मोबाइल छीन रहे हैं. और यहाँ हालांकि वो टेररिस्ट. What exactly is happening inside, Kumar? जो बाहर सूचना आई है, जो उनके वकील अंदर गए थे, उनके साथ भद्रता की जा रही है. उनको कुछ कागज साइन कराने के लिए. क्या कागज हैं ये जो साइन करवाए जा रहे हैं? ये तो दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार जाने. ये तो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस जाने, जिस पुलिस को कभी पुलिस नहीं गिना था गृह मंत्रालय में. दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस के शौर्य को प्रणाम करते हुए 1 करोड़ रुपए दिए शहीद हो जाने पर उनके परिजनों को. हम तो इतना सम्मान करते हैं. और वही दिल्ली पुलिस आज आशुतोष जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ, जो अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, धक्का मुक्की कर रही है. मेरा मोबाइल खो गया है, मुझे धक्के मारे गए. ऐसा क्या हो गया है? कौन अपराध
stay here? Will you stay here till the time Jitendra Singh Tomar isn't brought out of the? हम भारतीय राजनीति में तब तक स्टे करेंगे जब तक ये सुधर नहीं जाएंगे। एक तो सुधर गए, 0 पर आ गए, एक साहेब 3 पर आए हैं। जब तक इनकी सरकार का अहंकार न टूट जाएगा तब तक हम भारतीय राजनीति में रहेंगे और इसका जवाब हम पंजाब में देंगे। करिएगा, यही गलती शीला दीक्षित जी ने की थी, यही श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी और यही ये कर। Clearly, Navika, as you just heard Kumar Vishwas also saying that they are going to stay here. It is an illegal arrest that has been done without informing the speaker beforehand. In fact, they're also saying that Jitendra Tomar inside is being manhandled. They are not allowing Ashutosh and Kumar Vishwas, who have been waiting here for the past 1 hour, to go inside. They are saying that forcefully Jitendra Tomar is being asked to sign some documents. Yes, Navika. Aditi, this is Nupur here. Aditi, the point is that when you pointedly asked him again and again, what are these documents, Kumar Vishwas not willing to tell us what these documents are. Why is that? कि लोकायुक्त की तो स्थापना होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी ने पिछली बार तो 49 दिनों के अंदर सरकार गिरा दी थी कि जन लोकपाल का इनका बिल पास नहीं हुआ। अब 4 महीने होने को आए हैं, वो जन लोकपाल का बिल का पता नहीं और जो पुराना लोकायुक्त था वही हट गया। तो ये कैसी सरकार है, कैसी पारदर्शिता की बात करते हैं, कैसी ईमानदारी की बात करते हैं। कानून मंत्री फर्जी कानूनी डिग्री के केस में पकड़ा जाता है, लोकायुक्ता की अभी तक नियुक्ति नहीं होती है, जन लोकपाल के बिल का कोई अता पता नहीं है। तो क्या ये नैतिकता और पारदर्शिता की बात सिर्फ विपक्ष में रहते हुए तक सिर्फ याद आती थी, अब कुछ नहीं याद आया? सर, एक और अहम इशू है, पूरे भी आप देखें पूरे दिल्ली में पूरे मतलब सड़क पे कूड़ा फैला हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ये मौसम आमतौर पर जो है एपिडेमिक का मौसम होता है, अभी बारिश होगी सारे नाले बंद हो जाएंगे। तो ये दिल्ली देश की राजधानी और यहाँ पर ऐसी हालत पैदा होती है, इस पर कांग्रेस क्या व्यू ले रही है? मतलब किस तरह से नगर निगम में तनख्वाह नहीं मिली है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। देखिए, कल हम लोगों ने सिविक सेंटर पे प्रदर्शन भी किया है और हम लोगों ने तीनों हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहाँ पे थे। हमारा मानना ये है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तकरार चल रही है उसकी वजह से पूरी यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था एकदम ठप हो गई है। गवर्नेंस पैरालिसिस एक तरीके से दिल्ली के अंदर हो गया है और इस गवर्नेंस पैरालिसिस के लिए दोनों के दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर के दोषी हैं और इसके अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से कॉरपोरेशन को पैसा जितना मिलना चाहिए वो दिया नहीं जा रहा, लिहाजा आज कॉरपोरेशन के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। कल रामलीला मैदान में केजरीवाल जी ने 1 महीने की तनख्वाह देने के लिए करोड़ों रुपए सरकार के व्यर्थ गंवा दिए एक कार्यक्रम करने के लिए। इससे पहले भी मैंने कल भी बोला कि 2008-9 में जब कॉरपोरेशन एक थी तो 981 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने कॉरपोरेशन को दिया था अनुदान। केवल ये अनुदान और लोन के थे, इसके अलावा जो उनके और नॉन प्लान के थे जो दूसरे और हैं वो अलग हैं, लेकिन केवल अनुदान और लोन के रूप में 981 करोड़ रुपया 2008-9 में दिया और उसके बाद 2009-10 में 1409 करोड़ रुपया 1409 करोड़ रुपया अनुदान और लोन के रूप में कॉरपोरेशन को वापस दिल्ली सरकार ने अगले साल दिया। तो जब इतना पैसा दिल्ली सरकार ने उस वक्त दिया तो हमने तो कभी नहीं, शीला जी ने तो कभी भी नहीं रामलीला ग्राउंड में अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। एक तरफ जो है सरकारी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, उस दूसरी तरफ जो है आप लाखों करोड़ों रुपए आप उजाड़ रहे हैं रामलीला मैदान में फंक्शन पब्लिक करके और उसमें भी 500-700 लोगों को इकट्ठा करने के लिए इतना पैसा सरकार का व्यर्थ कर रहे हैं ताकि आप खुद अपनी पीठ थपथपा सके। तो ये दोनों की दोनों चीजें गलत हैं। और Well, a demand coming in from the Congress party right now that Tomar must resign, asking for the resignation of the law minister. But our correspondents are joining us, Neha Mordani as well as Aditi are joining us. Aditi is in fact outside the Vasant Vihar police station. That is where we understand the law minister of Delhi is currently being held. Aditi, you were speaking to senior Aam Aadmi party leaders. Now there are allegations and more allegations coming forth. But when you asked him a pointed question about the documents that he's being made to sign, they had no answers, did not elaborate at all. Absolutely, Nupur. In fact, Ashutosh was the first one who came out and said that Jitendra Singh Tomar inside is being forced to sign particular documents by the police officers, even while he is saying that he will not sign any unseen documents. However, upon repeatedly asking Kumar Vishwas as well that what are these documents that they are talking about, they are saying that they cannot say and they do not know exactly what documents they are. In fact, continuously they are alleging that he was illegally picked up today early morning. He was manhandled by the Delhi police despite the fact that he's a minister
in charge. He has a court case which is going on in the High Court. It is a matter which is sub judice. Then on what basis did the Delhi police pick up and arrest Jitendra Singh Tomar? In fact, what they are also alleging is that when Ashutosh tried to enter this Aditi, hold your thoughts for a minute. You just spoke to Kumar Vishwas a short while ago. Let's once again listen into what he said. Ashutosh is claiming that certain documents are being forcefully, in fact, Ashutosh, if you could also join us, you have been claiming that some documents are being signed by Jitendra Singh Tomar. Pressure पड़ रहा है उसको. What sort of documents are you talking about here? मेरा सिर्फ ये कहना है कि चाहे ढाका जाइए, चाहे शिकागो जाइए, चाहे वाशिंगटन जाइए, लगता यह है कि साहिब जो है वो 3 का आंकड़ा भूले नहीं है. उसके आगे शून्य जो लगा हुआ उनको परेशान करता है. यही केस, सेम केस श्री कठेरिया जी, जो आदरणीय मोदी जी के यशस्वी शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर चल रहा है. यही केस उनकी विदुषी, परम विदुषी मंत्री आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी के विरुद्ध चल रहा है. ये केस सब जुडिस है. इसमें मंत्री महोदय हर बार हर डेट पे जाते हैं, अपने कागज प्रस्तुत करते हैं और उनके कागज सही है ऐसा वो कह रहे हैं. मैं नहीं मानता, कोर्ट तय करेगा. लेकिन आप किसी व्यक्ति को आतंकवादी की तरह सुबह उसके घर से उठाएंगे, उनकी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर को बाहर धक्का देंगे, एक निर्वाचित मंत्री जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है उसको फोर्सफुली पीछे की सीट पर फेंक देंगे और उसके बाद यहां लाकर आशुतोष के साथ मारपीट करेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे. मैं बाहर खड़ा हुआ, आप ही अंदर नहीं आ पा रही हैं. टाइम नाउ तो बड़ा क्रांतिकारी चैनल है. मैं आदरणीय अर्नब गोस्वामी जी से अनुरोध करता हूं कि आज वो प्रधानमंत्री जी को फोन करें, अरुण जेटली जी को फोन करें और कहें कि कम से कम इतना तो प्रेस की आजादी रखें कि आपको सड़क पर. That's not the point out here, Kumar. There is a case of fake degrees. There's an allegation of fake degrees here. How is Aam Aadmi Party trying to justify that? बिल्कुल नहीं. हमने कहा जस्टिफाई किया? स्मृति ईरानी को हमने जस्टिफाई किया? नहीं. स्मृति ईरानी के फेक सर्टिफिकेट पे मुकदमा चल रहा है, कठेरिया जी पे फेक सर्टिफिकेट का मुकदमा चल रहा है. उन्हें गिरफ्तार किया किसी ने? कुछ हुआ नहीं. हम यही कह रहे हैं, मुकदमा है, उसमें हर बात पे जाते हैं. सुबह उठाना बिना सम्मान के, बिना स्पीकर को सूचना दिए, बिना मुख्यमंत्री को संज्ञान में लिए, ये आपातकाल जैसे माहौल से क्या जस्टिफाई करेंगे? मोदी गवर्नमेंट से आप, मैं टाइम्स नाउ से पूछ रहा हूँ, आप चला रहे हैं फेक डिग्री, आपने तय की है? टाइम नाउ जस्टिस हो गया है, हाई कोर्ट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट हो गया है. अरे आने दो. अच्छा, कल जितेंद्र तोमर की डिग्री असली निकली तो क्या टाइम्स नाउ क्षमा मांगेगा इस बात पर? It's not about Times or any other channel. It's about Kumar, you are trying to blame the Modi government out here for whatever is happening today. बिल्कुल, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. मैं दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है. एक निर्वाचित मंत्री को, अरे सेम केस कठेरिया जी पर है, सेम केस. उन्हें उठाया किसी ने? दिल्ली पुलिस सुबह पहुंचती कहती बात जरा करनी है, बाहर आइए. बाहर आते हैं, उनको गाड़ी में बैठाती है, उनके ड्राइवर को धक्का मारता है. एसीपी चला रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है. एसीपी खुद गाड़ी दिल्ली सरकार की चलाते हैं. मंत्री आगे बैठे, उनको बीच रास्ते में उतार के पीछे बिठाया जाता, धक्का मार के. मंत्री उतरने से मना कर देते. उनका मोबाइल छीन लिया जाता. जब मैं बात कर रहा था उससे मोबाइल छीना गया. उन्होंने कहा भाई साहब मुझसे मोबाइल छीन रहे हैं. और यहाँ हालांकि वो टेररिस्ट. What exactly is happening inside, Kumar? जो बाहर सूचना आई है, जो उनके वकील अंदर गए थे, उनके साथ भद्रता की जा रही है. उनको कुछ कागज साइन कराने के लिए. क्या कागज हैं ये जो साइन करवाए जा रहे हैं? ये तो दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार जाने. ये तो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस जाने, जिस पुलिस को कभी पुलिस नहीं गिना था गृह मंत्रालय ने. दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस के शौर्य को प्रणाम करते हुए 1 करोड़ रुपए दिए शहीद हो जाने पर उनके परिजनों को. हम तो इतना सम्मान करते हैं. और वही दिल्ली पुलिस आज आशुतोष जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ, जो अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, धक्का मुक्की कर रही है. मेरा मोबाइल खो गया है, मुझे धक्के मारे गए. ऐसा क्या हो गया है? कौन अपराधी है? Will you stay here till the time Jitendra Singh Tomar isn't brought out of the? हम भारतीय राजनीति में तब तक स्टे करेंगे जब तक ये सुधर नहीं जाएंगे. एक तो सुधर गए, 0 पर आ गए. एक जो साहेब 3 पर आए हैं. जब तक इनकी सरकार का अहंकार न टूट जाएगा तब तक हम भारतीय राजनीति में रहेंगे और इसका जवाब हम पंजाब में देंगे. करिएगा. यही गलती शीला दीक्षित जी ने की थी, यही श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी और यही ये कर. Well, Sneha is reporting from outside the Congress headquarters. We are also at the moment standing by for a press conference to come in from the Aam Aadmi Party. But let's listen into a reaction that we earlier got from Ashutosh, who has accused the Delhi police of manhandling Jitendra Singh Tomar inside that police station. Central government which is doing all of this against. See, I have been a journalist for more than 24 years, and I have never seen a situation like this. When I came over here, even the police pushed me, and they I don't know why they were pushing me so badly. And now I am getting the information that the police is misbehaving with Mr. Tomar. He has been slapped and he has been asked to sign on a paper, and which is refused. And now there is a continuous pressure on him by the police department inside that he should sign certain papers. I don't know why this is happening, and this information which I am getting from inside, it's very, very disturbing information. And I want to ask a question, that when the CNG fitness case was reopened by Anti-Corruption Bureau of Delhi government, only then why suddenly Lieutenant Governor at the behest of the Narendra Modi government has suddenly changed the chief of ACB and appointed somebody who tried to implicate Kumar Vishwas and Manish Sisodia in a case in Gajendra Singh, and that late night
night the FIR registered against Jitendra Tomar, and today, this morning, he has been treated like a terrorist, and he has been detained and he has been arrested. I want to ask this through your channel, that why when Anti-Corruption Bureau has reopened the case,